5 بجے میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں علی عباس اور میں ہوں سعدیہ خواص۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین پر فائرنگ کرنے والے 2 شوٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مرکزی سہولت کار، اسلحہ ڈیلر ساجد اور فخر عالم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے غضنفر خان سے۔ جی غضنفر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ لیگی رہنما جو ہیں بلال یاسین پر 30 دسمبر کو قاتلانہ حملہ جو کیا گیا تھا موہنی روڈ کے اوپر، یہ پولیس پہ کارروائی کرتے ہوئے 10 مختلف مقامات پر جو ہے لاہور کے جو ہے ریڈ کیے تھے، اور گزشتہ رات شادرہ کے علاقے میں ریڈ کے دوران جو ہے وہ دونوں شوٹرز جو ہیں جن کی تصاویر بھی منظر عام پہ آئی تھی، ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، جن کے نام ماجد اور کاشف ہیں، جنہیں کل عدالت میں جو ہے شناخت پیٹ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل 2 جو سہولت کار تھے ساجد اور فخر عالم، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر ملزمان جو ہیں ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ دونوں شوٹرز کو جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں شوٹرز کا جو تعلق ہے وہ مور کھنڈا ننکانہ صاحب سے ہے اور ان سے جو ہے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ایسی پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کا جو آغاز ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو سہولت کار تھے انہوں نے جو ہے وہ اسلحے کے ڈیلرز بھی تھے، انہوں نے غیر قانونی طور پر جو اسلحہ تھا جو ٹیمپرڈ کیا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ آگے افضل کے تھرو جو ہے ان شوٹرز کو فراہم کیا تھا۔ حسن پر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 13واں روز ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے شاہراہ فیصل بھی بلاک کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے صفدر عباس سے۔ صفدر عباس، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ کے بلدیاتی قوانین میں ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کراچی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے باہر کئی دن سے جو احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آگے کا کیا لاہے عمل طے کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، کیا کہیں گے، کیا لاہے عمل کا اعلان ہو گیا؟ بس لاہے عمل تو یہ ہے کہ دھرنا جاری ہے اور یہ دھرنا اب ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ اب ہم مختلف شاہراہوں پہ مارچ بھی کریں گے، دھرنے بھی دیں گے، اور پورا ہم جو ہے پروگرام چیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کی مرکزی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے اس دھرنے کو ایکسٹینڈ کریں۔ اور روز آپ دیکھتے ہیں یہاں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور مختلف جگہ کے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو خاص طور پر سندھ حکومت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، مختلف اداروں کے اندر رلتے پھرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دادرسی ہونی چاہیے۔ تو سارے اپنے جو ادارے ہیں وہ تو چلا نہیں پا رہے ہیں، مزید اداروں پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر اسی لیے ہم یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ انتخاب تو جب ہوگا وہ ہوگا۔ ہم تو اس لیے تحریک چلا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کراچی کے اس میئر کو بااختیار بنا جو کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے نا۔ پیپلز پارٹی پاپولر ہے تو پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا، تو وہ کیوں ڈر رہے ہیں، خوف کیوں کھا رہے ہیں کسی منتخب آدمی کو اختیار دینے سے، جبکہ وہ سارے اختیارات انہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت ان کے پاس ہیں، لیکن یہی آئین کہتا ہے کہ یہ اختیارات نیچے منتقل کرو، تو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا ہمارا دھرنا جاری بھی ہے اور دھرنا آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور روز اس میں جو ہے وہ نیا خون شامل ہو رہا ہے، جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں، اور اب اس دھرنے کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پورے شہر میں۔ اچھا حافظ صاحب، بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ شاہراہ فیصل کا بلاک کرنے بھی تجویز زیر غور ہے، تو وہ کب سے بلاک ہو جائے گی؟ کیا وہاں پر بھی دھرنا ہوگا؟ بالکل ہوگا، شاہراہ فیصل پہ بھی ہوگا اور مختلف بڑی شہراہوں پہ ہوگا۔ اس کا ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں اور اس کا اناؤنس کریں گے جلد ہم انشاءاللہ تعالی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سندھ اسمبلی کے باہر کئی روز سے دھرنا و احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اب اس کو توسیع دیتے ہوئے شاہراہ فیصل بھی بلاک کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس کا باقاعدہ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ جی اپڈیٹ کریں آپ کو، کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ملازمین اور انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ نے ملازمین کے تمام مطالبات منظور کر لیے ہیں۔ ملازمین نے نوٹیفیکیشن ملنے کے بعد بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران شیخ سے۔ کامران شیخ، بتائیے گا کیا تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں؟ بالکل سعدیہ، انتظامیہ کا تو یہ کہنا ہے کہ تمام مطالبات مظاہرین کے مان لیے گئے ہیں۔ مظاہرین گزشتہ 3 روز سے NICVT میں سراپا احتجاج تھے، جس کی وجہ سے مریض شدید ذہنی اذیت کا شکار تھے۔ امراض قلب کا اسپتال ہے، دل کے مریض یہاں پر آتے ہیں جنہیں مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا تھا، کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مظاہرین سراپا احتجاج تھے۔ ان کے مطالبات یہ تھے کہ انہیں کورونا رسک الاؤنس دیا جائے اور جو
मुस्तकिल मुलाजमीन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन्हें मुस्तकिल किया जाए। आज इंतजामिया से इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और जो कामयाब हुए हैं उसमें कहा गया है कि कोरोना अलाउंस रवा माह की 24 तारीख को अदा कर दिया जाएगा, जबकि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 20 मार्च से शुरू होगा, जबकि मुलाजमीन की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो जाएगा। जब ये तमाम मुज़ाकरात हुए तो मुलाजमीन ने इंतजामिया से नोटिफिकेशन मांगा और नोटिफिकेशन मिलने के बाद जो बाइकॉट का एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 3 रोज तक जो परेशानी इंतजामिया की, इस हवाले से NICVD इंतजामिया मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रही है। ठीक कामरान, बहुत शुक्रिया। कनकोट में खाद न मिलने पर आबादगारों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और तमाम जो काश्तकार और जिम्मेदारान हैं ज़रूरी खाद ना मिलने के बायस यहाँ पर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। यहाँ पर रोड भी ब्लॉक की हुई है और ट्रैफिक भी जैम हो चुका है। इसी हवाले से हमसे जानेंगे कि आखिर मसला है क्या, क्यों नहीं खाद फराहम की जा रही है आप लोगों को? 2 मंथ हुए हैं, हम सरापा एहतजाज हैं, हम जलील हो रहे हैं। ये हमारे जो भी काश्तकार हैं वो हमारे साथ हैं, हमें खाद नहीं मिल रहा है, ये ब्लैक में चला रहे हैं। DC कश्मीर हम गरीब इस वजह से एहसास कर रहे हैं और हमको खाद मिलना चाहिए। जी, आबादगारों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर के सामने धरना है और उन्होंने शदीद नारेबाजी की है। डिप्टी कमिश्नर को हटाओ, ये नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो ज़रूरी खाद है वो ब्लैक पर फरोख्त की जा रही है। जब तक इनको गवर्नमेंट के रेट से नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह धरना जारी रहेगा। अगर इन्हें खाद नहीं फराहम की जाती तो आइंदा जो आने वाली फसलें हैं वो मुकम्मल तबाह हो सकती हैं। इनके मुतालबात जब तक मुकम्मल नहीं होंगे तब तक इनका धरना जारी रहेगा। जी, बलूचिस्तान के सनती शहर हब में गैस की बंदिश के बायस खवातीन का सफर जवाब दे गया है। खवातीन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आई हैं। खवातीन की जानिब से कौमी शाहरा पर शदीद एहतजाज किया गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे दीदार अली से। दीदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का सनती शहर है। अब यहाँ पर गैस का बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ पहले भी एहतजाज हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है सियासी पार्टियों की जानिब से भी, लेकिन गैस का बहरान यूं का यूं है। आज खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई और यहाँ पर RCD शाहरा को ब्लॉक कर दिया और मुख्तलिफ जगहों पर टायर वगैरह जलाए गए। तो ताहम सुई सदर गैस इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो है ऑफिसर यहाँ पर नहीं आया। ताहम अब के जो पुलिस है, SHO तिथि है, वो यहाँ पर आए। उन्होंने खवातीन के साथ मुज़ाकरात किए और खवातीन को यकीन यानी कि मैं जाकर गैस ऑफिसर के और आला हुकाम से बात करूंगा और गैस के मसले को हल की कोशिश करूंगा, जिसके बाद खवातीन पुरमन तौर पर मुंतशिर हो गई। दीदार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद सखर की इंतजामिया ने बिल बोर्ड्स नहीं हटाए। मजीद जानते हैं सखर में आज न्यूज के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील। जी, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत और वाज़ेह हुक्म के बावजूद सखर में बड़े बड़े बिल बोर्ड जो हैं वो लगे हुए हैं। 30 से ज़ायद मकामात पर बिल बोर्ड लगे हुए हैं। रेसकोर्स रोड है, लब्बे मैरान है, सिटी पॉइंट है, मिलिट्री रोड है और दीगर मकामात है, वहाँ पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं जो खतरनाक हैं। तेज हवा चली तो ये किसी भी सूरत में जो है नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इंतजामिया हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, कोई भी इन बोर्डों को उतारने के लिए तैयार नहीं है। बताया जाता है कि ये 52 अफराद की ने ये बोर्ड लगाए हुए हैं और मुबैना तौर पर कुछ महकमे जो है इनका किराया भी वसूल कर रहे हैं। तो बोर्ड लगे हुए हैं वो नाकिस मटेरियल के साथ और बुरी तरह जो है वो जो कानून के मुताबिक लगाए जाते हैं इस तरह नहीं लगाए गए हैं। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये बड़े बड़े जो खतरनाक बिल बोर्ड हैं ये उतारे जाएं ताकि इंसानी जान ज़ाया न हो। जी, और अभी आपको बताएं कयाम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 भाई 74 साल बाद करतारपुर में मिल गए। मुलाकात के वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले और आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक, बताइएगा। जी, ये जो करतारपुर जो राहदारी है ये अमन की राहदारी और भाईचारे की राहदारी है। करतारपुर राहदारी के जरिए 2 भाई जो है जो क्या में पाकिस्तान के वक्त आपस में बिछड़े थे, तो यार करतारपुर राहदारी की वजह से दोनों भाई जो है वो 74 साल के बाद जो है मोहम्मद सदीक अपने भाई के साथ मिले हैं। उनके मिलने के जो मनाजर थे इंतहाई रिकत अमेज मनाजर थे। करतारपुर के अंदर जो जितने भी यात्री या जितने भी विजिटर आए हुए थे
वो दोनों भाइयों के मिलने के इस मनाजर को देखकर हर आंख जो है वो अशबार थी और उनका कहना था, एक भाई दूसरे भाई से ये कह रहा था कि अगर हम जिंदा हैं तो देख लो कुदरत ने हमें किस मोड़ पे आके मिला दिया है। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये जो राहदारी करतारपुर की राहदारी खोली है, इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जो अमन और भाईचारे की ये जो इब्तदा पाकिस्तान की तरफ से की है, इसने बहुत से बिछड़े हुए दिलों को, बहुत से बिछड़े हुए रिश्तों को आपस में मिला दिया है। बहुत शुक्रिया, हमें बता रहे थे आप। यहाँ आपको बताएं कि बन्नू में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए। शहरी कहते हैं पूरा दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली आती है, ऐसे में कोई काम नहीं होता। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान एक शहरी के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी नोमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला बन्नू में भी बेतहाशा बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों इलाकों में जो है तकरीबन 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, जबकि देही इलाकों में जो है तकरीबन 23 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे कि इस वक्त उनके इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है और उनको किन मुश्किलात का सामना है। काफी अरसे से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला चला रहा है। शहरी इलाकों में तकरीबन 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और देही इलाके में तकरीबन 22 घंटे 23 घंटे लोड शेडिंग होती है। इसके साथ जो 1 घंटा बिजली होती है या 1.5 घंटे बिजली होती है तो वो भी ट्रिपिंग के साथ होती है, मतलब 1 मिनट के लिए बिजली आती है तो चली जाती है। कुंडा गैर कानूनी बिजली लगाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो वापडा को चाहिए कि उस थाने के जरिए उन बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि वो पूरे देहात की बिजली बंद करे। आपने इस शहरी की बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि लोड शेडिंग, बिजली लोड शेडिंग जो है उनके लिए दर्जे सर बन चुका है। उनका ये भी कहना था कि वापडा के लिए जो है खसूसी थाना भी कायम किया गया है, लेकिन उसकी तरफ से भी तो बिजली चोरों के खिलाफ और कुंडा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाती और ये कसर जो है वो शहरियों पर और सार्फिन पर ही निकाला जाता है। जी, हाफिजाबाद में गुजरांवाला रोड पर दुकान में डकैती की वारदात हुई। 2 डाकू दुकानदार से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने जाते हुए राहगीर से मोटरसाइकिल भी छीनी। मजीद तफसीलात जानते हैं अंजुम सुहेल से। अंजुम, बताइएगा इस वारदात के हवाले से। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हाफिजाबाद शहर और गिरदनवा में चोरी डकैती की वारदातों से जो ताजर, दुकानदार और शहरी सख्त परेशान है और दिन दिहाड़ी ये डकैती की वारदात हुई है, जहाँ पे 2 मुसल्लह डाकू गुजरांवाला रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे दाखिल हुए, जहाँ उन्होंने मुलाजिम पर तशद्दुद भी किया और दुकानदार से 5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। आज न्यूज ने इस वाक़े की CCTV जो फुटेज है वो भी हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्लह डाकू दाखिल हुए हैं दुकान में, जहाँ पे उन्होंने लूटमार की है और इस दुकान से लूटमार करने के बाद ये डाकू जाते हुए राहगीर से मोटरसाइकिल भी छीनकर फरार हुए हैं। पुलिस ताहाल इन मुलजमान का सुराग नहीं लगा सकी। न सिर्फ हाफिजाबाद शहर बल्कि जो दीगर जो देहात है, दीगर इलाके हैं, वहाँ पे भी चोरी डकैती की वारदातों से जो शहरी हैं वो सख्त परेशान है। दुकानदार, ताजर जो है वो सापा एहतजाज है चोरी डकैती की इन बढ़ती हुई वारदातों की वजह से। पुलिस ने CCTV फुटेज भी हासिल कर दिया, लेकिन अभी तक इन मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, ना इनका मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अंजुम सुहेल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोहाट के अवाम भी महंगाई के बढ़ते तूफान की जद में हैं। सब्जी, फ्रूट के साथ हर चीज महंगी हो चुकी है। इस वक्त कोहाट के तिजारती मरकज में हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी अलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का तूफान जो है वो कोहाट की फिजाओं में मंडला रहा है। इस वक्त सब्जी, फ्रूट, अनाज और चूंकि सर्दियों के मौसम में मछली का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है तो मछलियां भी महंगी हो चुकी हैं। आवाम बहुत परेशान है और अरबाब इख्तियार से मुतालबा करती है कि खुदारा इस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। मेरे साथ यहाँ पर मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइए कि क्या सूरत हाल है महंगाई की? यार, महंगाई की वजह से तो गरीब आवाम बहुत परेशान है और हम इमरान खान साहब को और असद उमर को और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर साहब को उसे अपील करते हैं कि इस तरह कोई पॉलिसी बनाए कि जिसकी वजह से मतलब गरीब आवाम को फ़ायदा हो। जी, आपने मकामी बाशिंदे की बात सुनी। उनका कहना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से और खुसूसी तौर पर सूबाई हुकूमत से भी, खैबर पख्तूनख्वा की, हम उनसे अपील करते हैं कि ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए कि महंगाई पे कंट्रोल हो और आम और गरीब आदमी को फ़ायदा पहुँच पाए। जी, खानेवाल के नवाही इलाका पिरोवाल में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात हुई। वाकये की CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ गादी। अशरफ गादी, बताइएगा इस वारदात के हवाले से। जी बिल्कुल, ये खानेवाल का नवाही इलाका पिरोवाल है, जहाँ पर करियाने की दुकान पर 3 नामालूम मुसल्ला
डाकुओं ने गन पॉइंट पर दुकानदार जो है करियाना फरोश जो है उससे 2.5 लाख रुपया जो जबरदस्ती छीन लिया है और उससे मोबाइल छीन कर फरार हो गए हैं। ताहम जो है अभी तक जो है पुलिस जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिला भर में मौसम सर्द होने की वजह से रात के अंधेरे में डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है और आए दिन जो है डेली की बुनियाद पर जो है दर्जनों जो है डकैती की वारदातें हो रही हैं, लेकिन ताहाल जो है पुलिस जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिससे जो है शहरी भी खासे जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। ताहम पुलिस से शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि खुदा के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अशोक कादी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर की तहसील बाड़ा में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाकिर आफरीदी। जी बिल्कुल, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ बाड़ा तहसील में भी लोकल ट्रांसपोर्ट वालों ने किरायानामा में इजाफा किया है, जिनकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। ज़िली इंतजामिया इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की है। पहले 30 रुपये लिए जाते थे जो अब 50 रुपये लिए जाते हैं। टैक्सी में पहले 50 रुपये लिए जाते थे लेकिन अब 100 रुपये लिए जाते हैं। हमारे साथ एक शहरी खड़ा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, लोकल ट्रांसपोर्ट इंतजामिया ने किरायों में बहुत इजाफा किया है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ है। इंतजामिया ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और ना सरकारी किरायानामा जारी किया है अभी तक। जी, शहरियों का भी मुतालबा है कि इस हवाले से जिला इंतजामिया कार्रवाई करे और नया किरायानामा जारी किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। डेरा बुगटी में वाक़ प्राइमरी स्कूल दोस्त मोहम्मद की इमारत नामुकम्मल है, जिसके बायस सख्त सर्दी में भी तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमाम बुगटी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम किली दोस्त मोहम्मद प्राइमरी स्कूल किली दोस्त मोहम्मद में मौजूद हैं। यहाँ पे एक तरफ तो यहाँ पे एक बिल्डिंग जो बनाया गया है जो नामुकम्मल है। इस जनवरी की सर्दी में भी बिल्डिंग नामुकम्मल होने की वजह से फिर बिल्डिंग में दरारें हैं और ठेकेदार ने काम मुकम्मल नहीं किया। दूसरी जनब इस सर्द हवाओं के जद में इस वक्त बच्चे जो किली दोस्त मोहम्मद के हैं वो खुली आसमान तले यहाँ पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त उसके उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चे आपके सामने हैं, बिल्डिंग भी आपने देखा है। ये ठेकेदार साहब ने इसको नामुकम्मल किया हुआ है। उसका बजट 50 लाख हमारे सुनने में आया है कि वो उसने निकाल करके अपने पता नहीं कोई कारोबार में लगाए हैं, पता नहीं क्या किया है। बजट खुर्द की नजर, बच्चे आपके सामने हैं। यहाँ पे ठेकेदार की जानब से गफलत बरता गया है और यहाँ पे जो काम है वो मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ना तो बच्चे अंदर स्कूल में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे बच्चे इस वक्त शदीद सर्दी में बाहर यहाँ पे खुले आसमान तले यहाँ पे तालीम हासिल करने पर मजबूर है। घोटकी में यूरिया खाद का बहरान बरकरार है। मीरपुर माथेलो में खाद के लिए आने वाले किसानों पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। 8 किसान जख्मी हो गए। किसानों का कहना है कि इंतजामिया और खाद डीलर्स मिलकर खाद का मसनूई बहरान पैदा कर रहे हैं। खाद को ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत खाद की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाए। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने सरकारी सेल पॉइंट कायम कर दिया है, जहां पर 4 रुकनी कमेटी की निगरानी में छोटे काश्तकारों को यूरिया खाद दी जा रही है। इस बारे में मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी एतजाज अंजम और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए इंतहाई आसान इकदाम उठाया है। इस वक्त कोटा रोड पर सरकारी सेल पॉइंट कायम कर दिया गया है, जहां पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 4 रुकनी कमेटी की निगरानी में काश्तकारों को बिला तफरीक जो है इस वक्त खाद तकसीम की जा रही है। यहाँ पे डेली की बेस पे 2000 से 2500 बोरी सेल की जा रही है। किसान कार्ड और जो दुनियापुर का फार्मर है उनको बिला इम्तियाज खाद जारी है। बिल्कुल जी, आपने जो है यहाँ पर जो है रात के बाद इबादत की बात सुनी, जिनका कहना है कि यहाँ पर हर रोज 2000 बोरी दी जा रही है। मैं आपको बताता चलूँगा, इससे पहले खाद डीलर्स की जो है हर दरमी कैब थी, मानो फराद साहब को नवाजा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है सरकारी सेल पॉइंट कायम हो जाने के बाद यहाँ पर काश्तकारों को कंपेल जो है खत्म हो चुकी है। काश्तकारों की शिकायत का सेल पॉइंट कायम हो जाने से बड़ी हद तक अजाला हुआ है। जी
बहवलपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद की बदतरीन किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से डायरेक्टर महकमे ज़राअत के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद की शदीद किल्लत ने काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महकमे ज़राअत के अफसरान की मुबैना मिली भगत से खाद को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने खाद की दस्तयाबी फौरी मुमकिन बनाने का मुतालबा किया। सिंध हुकूमत के खिलाफ जीडीए की जानिब से बदीन प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। बिल्कुल, इस वक्त बदीन प्रेस क्लब के सामने जीडीए की जानिब से हुकूमत सिंध के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर धरना दिया गया है जिसमें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ग्रुप के अफराद भी जो हैं वो शामिल हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये धरना सिंध हुकूमत जरदारी लीग के खिलाफ है, जो कानून में आइन में तरमीम करके सिंध हुकूमत ने हद निजाम अपना पेश कर रहे हैं। जो काला कानून बना रहे हैं, हम उनके खिलाफ है कि भाई ये कानून न बनाया जाए, और पहले भी ये बनाया गया था, उसके खिलाफ हमने धरने दिए थे। अब ये कानून पास कर रहे हैं कि हम बस अपना पेट भरें और इनका कोई मकसद लिए। सिंध की आवाम और बदीन की आवाम इस आर्डिनेंस को नामंजूर करती है। इनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो बल्दियाती निजाम राइज किया जा रहा है या उसकी कोशिश की जा रही है वो इन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि सिंध की आवाम के साथ पहले ही बहुत जुल्म हो चुका है, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक तहरीक का आगाज है, ये एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से जिला लजबेला के दूर अफ्तादा इलाके नाका खाड़ी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में कोस्ट गार्ड के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। एक रोज में 773 खवातीन, बच्चों और मर्द मरीजों ने इलाज मुआलजे की सहूलत से इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। सांगढ़ में सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जीडीए की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया। मजीद जानते अब्दुर्रहमान खासकेली से। जी बिल्कुल, हाल ही में जो हुकूमत सिंध की जानिब से लोकल एक्ट में जो तरमीम पेश की गई है, इसके खिलाफ आज जीडीए, एमक्यूएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फंक्शनल ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई है और इस एक्ट के खिलाफ और हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। आइए इस हवाले से रहनुमाओं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस रूट पे लोगों को, आवाम को पावर डेलीगेट करने का है। जो पिछले नाज़मी सिस्टम था वो सब लोकल लोगों को जो जरूरियात है, सैनिटेशन है, पानी अच्छा सप्लाई करना, वो ज़ाहिर वो चेयरमैन और लोकल गवर्नमेंट पूरी दुनिया में ये है। चेयरमैन को, काउंसलर को, आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को नाली साफ कराने का भी इख्तियार नहीं है। उनके इख्तियार की बहाली के लिए हम निकले कि लोगों के लिए जो उनके दहलीज का काम हो सके, तो ये जो कानून लाएं, किस तरह से लाएं, किस तरह से पास कराएंगे आपके सामने है। लाइट्स लगाना है, छोटी मोटी गलियां या रास्ते बनाने हैं या गंदा पानी निकालना है, वो अख्तियारात भी एक एमपीएस एमएनएस को दे दिए हैं। जो 13 अख्तियारात थे इस एक्ट में, जो 13 उन्होंने काटे हैं एक्ट, वो सारे अवाम से रिलेटेड थे। जी, रहनुमाओं ने यहाँ पर कहा है कि इस काले कानून को हम नहीं मानते और हुकूमत सिंध फौरी तौर पर इस बल्दियाती तरमीमी बिल का जो एक्ट पेश किया गया इसे मुस्तरद करे, वरना दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। पतुकी की गुलशन सुबहान में 2 घरों में डकैती की वारदात हुई। 6 डाकुओं ने दोनों घरों के अहले खाना को यरगमाल बनाकर जेवरात, नकदी और कीमती अशिया लूट ली। वाकये की इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। ताहाल पुलिस मुलजिमान का पता लगाने में नाकाम है। इलाके में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरियों ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहे। वेलकम बैक। टंडोला यार में मुत्तहदा ओपोजिशन की जानिब से बल्दियाती कानून के खिलाफ रैली निकाली गई। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी, इस वक्त मैं जो है किला चौक पे मौजूद हूँ। किला चौक से प्रेस क्लब तक जो है जीडीए, एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ की जानिब से, मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से सिंध से पास किए हुए काले कानून के खिलाफ जो है एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है मुत्तहदा के रहनुमा मौजूद हैं। आज का ये एहतजाज और ये पुरअमन रैली प्रेस क्लब तक जाएगी और इसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान, पीटीआई और जीडीए मुश्तरका तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। और ये एहतजाज जो बल्दियाती काला कानून
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जबरन नाफिज किया है उसके खिलाफ है, और इंशाल्लाह हम ये किसी सूरत के अंदर भी ये कानून नाफिज नहीं होने देंगे। ऐसा जो GDA के रहनुमा मौजूद हैं, मालूम करते हैं कि इनका क्या कहना है। पार्टी को जब अपना मफाद होता है तो मुजद्दिद करती है वो अदल बदल कानून करने के लिए। हम इस काले कानून को रद्द करते हैं जो यूसीओ को कन्वर्ट करके म्युनिसिपल कमेटी में सेल्फिश ऑफ द बेनिफिशियल के लिए लाया गया है, हम उसको मजम्मत तौर पे रिजेक्ट करते हैं। मुतदा अपोजिशन जो है सिंध असेंबली के काले कानून को जो है रद्द करती है, और म्युनिसिपल के टंडोल यार्ड में भी जो हदूद शामिल किए गए हैं इस हदबंदी को भी जो है मुस्तरद करती है। ननकाना साहब में शहरियों की लापरवाही के बायस कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अफजल हक से। जी अफजल हक। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में शहरियों की लापरवाही, बेहतियाती और गैर संजीदगी के बाद कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आए रोज कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, जहां एक ही दिन में निजी स्कूल के 11 बच्चों समेत कोरोना के 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना SOPs पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जिली हुकूमत और महकमा हेल्थ की तरफ से आगाही तो दी जा रही है, मगर कोई शहरी कान धरने के लिए तैयार नहीं है। ना ही कोई मास्क पहन रहा है और ना ही कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को तैयार है। बाजारों में, शादी हाल्स में और मुख्तलिफ तलीमी इदारों में कहीं भी कोरोना SOPs पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। नो मास्क नो एंट्री के हवाले से बोर्ड तो अबेजा हैं, मगर इन पर अमल दरामद कहीं नहीं है। ननकाना साहब में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की सूरत हाल खतरनाक हो रही है, और जबकि CO हेल्थ डॉक्टर राशिद खान का कहना है कि अगर शहरियों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद न किया तो कोरोना की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। जी। जलालपुर पीरवाला में म्युनिसिपल कमेटी के अकब में वाक़ गुलिस्तान फातिमा पार्क की हालत अबतर हो गई है। पार्क में हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के गुलिस्तान फातिमा पार्क में। किसी जमाने ये पार्क बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और यहाँ पर जो खवातीन हैं वॉक किया करती थी, लेकिन अब की बात की जाए तो यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है, गदर रेड़ियां पे खड़े हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ नशा इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। शहर के सेंटर में जगह है, पहले पार्क हुआ करता था, अब हुकूमत की इंतजाम की नाली की वजह से यहाँ पर गधे बंधे हुए हैं, कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, और नशेई जो हैं वो नशा करते भी हैं और यहाँ पे खरीदो फरोख्त भी करते हैं। हमारी इंतजाम से यही दरखास्त है कि इस जगह को पार्क की शक्ल दी जाए, पहले जैसे पार्क हुआ करता था। पार्क को फौरी तौर पर दोबारा बनाया जाए। जहाँ पर लेडीज पार्क नहीं है इसको दोबारा लेडीज पार्क की शक्ल दी जाए, ताकि जो खवातीन हैं वो इजिली वॉक कर सकें और इंजॉय कर सकें। जी। खुर्शीदाबाद के इलाके बस्तीमाड़ा में लेन देन के तनाजे पर 2 अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे बाप और बेटी जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुरसा के मुताबिक मुलजिमान ने पैसों के मामले पर जख्मी फैज बख्श को जामिन बनाया था। रकम की बर वक्त वापसी न होने की रंजिश पर आज फायरिंग कर दी। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। रायगढ़ की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को जदीद तरीका इलाज के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात आसिफ तईम शेख की इस रिपोर्ट में देखते हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जदीद तरीका इलाज लेप्रोस्कोपी के हवाले से वर्कशॉप मुनक्कद हुई, जिसमें डॉक्टर की कसीर तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप में डॉक्टर को बताया गया कि कैमरे के जरिए इलाज मुआवजा आसान हो जाएगा। वर्कशॉप में शरीक डॉक्टर ने आई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, लेप्रोस्कोपी एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें मरीज जो है वो बहुत जल्द शिफायाब होकर अगले ही दिन हॉस्पिटल से घर चला जाता है। गायनी के शोबे में लेप्रोस्कोपी के फादियत पे हमने एक टीचिंग सेशन का इनेकाद किया था, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स को हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया। इसके लिए हमने स्पेशल किस्म के मॉडल्स बाहर से मंगवाए हैं। आज इंडस हॉस्पिटल के अंदर इसकी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिससे हमने इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। हमने इस बारे में आगाही फराहम की है कि अब कैमरे से ऑपरेशन ज्यादा आसान और ज्यादा सेहतमंद और मरीज ज्यादा जल्दी सेहतयाब हो। जदीद तरीका इलाज लेप्रोस्कोपी से मरीजों को कम वक्त में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर आएंगी। आसिफ नईम शेख, आज न्यूज रायगढ़। आरिफ वाला में बाहिम्मत खातून ने शोहर की वफात के बाद खुद अपने खानदान की किफालत शुरू कर दी है। राना मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट देखते हैं। शबाना बीबी ने शौहर की वफात के बाद हिम्मत न हारी और मसरूफ तरीन बाजार रेशम गली में नान टिक्कियों की रेहड़ी लगा ली। बच्चों की खातिर बाहर निकली हूँ और किसी के आगे रोज रोज हाथ फैलाना अच्छा भी नहीं लगता। बहन भाइयों के या कोई भी हो मुझे दे दें, हेल्प कर दें।
اس کے یہی وجہ ہے کہ میں خود کما کر بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. شہری خاتون کے ہاتھ کی بنی چٹپٹی ٹکیاں کھانے کے ساتھ ساتھ محنت کش خاتون کی ہمت و حوصلے کو بھی داد دیتے ہیں. دکاندار آ رہے ہیں، سامنے لے کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بالکل ایسے جیسے گھر کا ٹیسٹ ہے. ہلکی مرچ مسالے میں بہت اچھا کھانا دے رہے ہیں باجی. یہاں یہ دیکھیں اپنا گھر کے لیے اپنے کتنی محنت سے کام کرتی ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے مثال ہے. باہمت بیوہ خاتون مجبوری، غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسنے کے باوجود اپنے خاندان کا واحد سہارا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شرپور شریف میں سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈی پی او شیخو پورہ نے نوٹس لیا، جس پر پولیس نے 2 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. دونوں ملزمان سگے بھائی ہیں. خانیوال میں مستحق افراد کو گرم ملبوسات فراہم کرنے کے لیے احساس بازار قائم کر دیا گیا ہے، جہاں لوگوں میں مفت جیکٹ، سویٹر، کمبل اور رضائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. اس پر بات کریں گے خانیوال میں موجود ہمارے نمائندے محمد اشرف سے. اشرف بتائیے گا. بالکل، ضلع انتظامیہ اور مخیر حضرات کی جانب سے خانیوال بلدیہ خانیوال کے سبزہ زار میں احساس بازار کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر غریب اور مستحق افراد میں گرم کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر خانیوال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ جو احساس بازار ہے وہ ہمارے فلنتھروپسٹ نے یہاں پہ لگا دیا ہے، جس میں ہمارے مستحق جو فیملیز ہیں ان کے لیے جو موسمی حوالے سے چیزیں ہیں، لباس ہے، رضائیاں ہیں یا دیگر وہ اشیاء یہاں پہ موجود ہیں. اس کا میکنزم ہے اور ہمارے سارے افسران اور ہمارے فلنتھروپسٹ مل کے اس کو چلا رہے ہیں. ہوپ فلی کوشش کریں گے کہ میکسیمم ٹائم یہاں پہ جو چیزیں لوگوں کو یہاں پہ پرووائڈ کریں. بالکل، آپ نے سنا ڈپٹی کمشنر کا یہی کہنا ہے کہ غریب اور مستحق افراد میں گرم کپڑوں کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے آئندہ بھی یہ جاری رہے گا، اور سردی کے سخت موسم میں ان غریب لوگوں کو یہ گرم کپڑے فراہم کرنا یہ اپنی اولین ترجیح میں شامل سمجھتے ہیں. جی، جنگ میں بھی احساس بازار قائم کیا گیا ہے، جہاں غریب اور مستحق افراد کو تمام اشیاء مفت فراہم کی جا رہی ہیں. جنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں وحید ملک. حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر شہید عباس جوہر نے مخیر حضرات کے تعاون سے ضلع کونسل کے احاطہ میں احساس بازار کا افتتاح کر دیا. یہاں پر غریب اور مستحق افراد جو سردی کے موسم میں گرم کپڑے اور جوتے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں تمام تر اشیاء کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. احساس بازار کو مکمل طور پر اسٹیبلش کر دی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات تھی کہ سردی کے موسم میں ہمارے وہ جو مستحق افراد ہیں، جو غریب لوگ استطاعت نہیں رکھتے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے گرم ملبوسات لینے کے لیے، ان کے لیے ہم ایک فیسلٹی پرووائڈ کریں، ایک احساس بازار قائم کریں جس میں تمام مخیر حضرات کو انوائٹ کریں کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارے ان غریب بہن بھائیوں کی مدد کریں. بازار سے مستفید ہو کر آنے والے افراد کا کہنا تھا کہ حکومت کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے سخت سردی میں انہیں گرم کپڑے فراہم کیے. رات تلاؤ یہ بھائی کپڑے ملتے پن غریب غربے نو، چھوٹے چھوٹے بچے نے ملے نہیں تھے، آپ دے مل گا جوڑا. سردیاں تھی، جوتی کپڑا نہیں تھی کول، لیکن انہوں نے جو انتظام کیا بہت اچھا کیا. غریب آدمی سے ہم آئے ہیں اور اسی طرح ہمارا غریبوں کے لیے تعاون کرتے رہے گا، انشاءاللہ دعائیں دے گی. احساس بازار حکومت کا احسن اقدام ہے. اس سے غریب اور نادار افراد بھی سخت سردی سے محفوظ رہنے کے لیے بآسانی گرم ملبوسات حاصل کر سکیں گے. وحید ملک، آج نیوز، جنگ. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ریڈ زون جانے کی کوشش میں سڑک میدان جنگ بن گئی. پولیس نے احتجاجی ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج کر دیا. 2 درجن سے زائد ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز نے آج ریڈ زون جانے کا اعلان کر رکھا تھا. ہڑتالی ڈاکٹروں اور ان کے ساتھیوں کو پولیس نے انسکم روڈ پہ روک لیا اور دھکم بیل شروع ہو گئی. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، 30 دن جیل ہم نے کاٹی ہے. ابھی 200 پر لاٹھی چارج ہوا ہے. 10 ڈاکٹر ہمارے زخمی ہیں جنہوں ٹراما سینٹر میں ہم نے داخل کیا ہوا ہے. حکام کا دعویٰ ہے کہ کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. پرامن احتجاج سے کسی نے نہیں روکا. جو بھی پولیس نے جو بھی ڈیفینسو میجرز لیے ہیں، کوئی لاٹھی چارج اس قسم کا کوئی واقعہ اس طرح کا انہوں نے کوئی پری پلان نہیں کیا ہے، صرف انہوں نے ڈیفینسو میجرز لیے. یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں. پرامن احتجاج پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جن لوگوں نے پولیس کے اظہار توڑنے کی کوشش کی اور
मुश्तैल होने की कोशिश की है। उस दौरान हमने जो मुश्तैल लोग थे उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों और लाठीचार्ज के बाद पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स ने इंस्कम रोड पे धरना दे दिया। डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों की निजकारी और सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ गुज़श्ता 1.5 माह से काम बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन मुहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।